Hello students, today's topic is structure and function of plasma membrane. We will be studying this in detail and in 3 lectures we will complete the topic. In first lecture we will deal with the various structural model proposed by different scientists. In second lecture we will go for the biochemistry of the plasma membrane, and thirdly the functional aspect. So today we are going to discuss about the different structures or the structural models proposed by various scientists. So we find that plasma membrane, that is a very important structure in biological cells, and as we know, plasma membrane, or we can also call it as a cell membrane, that separates the cytoplasm, that is the inner part, with the exterior. So we can say it is a boundary of a cell that separates the external environment, external world, with the internal cytoplasmic or living functional compartment. And it is a living structure. This is very, very important. Plasma membrane is always found on the living cells. It is never present on dead cells. And it is also considered important to recognize a cellular structure. अगर आपको याद हो तो जैसे हम पढ़ते हैं वायरस, वायरॉइड्स, prions, we call them subcellular structure. And why they are subcellular structure? Because there is no cell membrane or plasma membrane. So it is a feature of living cell. Chemically, if we go by the structure, then it is made up of lipids and protein. Collectively, we can call it as a lipoprotein structure. And main component of the cell membrane, plasma membrane, is glycerophospholipids. Glycerophospholipids यानी mainly तो phospholipids हैं, and in certain cases carbohydrate may also be attached. And a very important thing, that formation of a membrane is a physical property. It is a property of a colloidal solution. यदि कोई भी colloidal solution है तो वह अपने चारों तरफ एक इंट्राफेसियल बाउंड्री मेम्ब्रेन ज़रूर बनाता है. ज़रूरी नहीं है कि वह लिविंग ही हो. इवन द डेड सॉल्यूशंस इन केमिस्ट्री, if they are colloidal in nature, they will make a intrafacial or boundary membranes. एक सीधा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं. चाय को आप कुछ समय के लिए रख दें, उसके ऊपर मलाई की तरह की जो परत आ रही है, इवन यदि आप क्ले प्लस वाटर, चिकनी मिट्टी और पानी का घोल रखें तो भी ऊपर की तरफ एक पतली झिल्ली बन जाएगी. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो भी होगा उसके चारों तरफ इंट्राफेसियल मेम्ब्रेन बनती ही है, और ये सेल में भी इसी तरह से सेल का इवोल्यूशन भी हुआ होगा. नॉर्मल फंक्शन देखें यदि हम इसके, तो ये अंदरूनी वातावरण को बाहरी वातावरण से पृथक रखता है. इट सेपरेट्स द इनर कंटेंट, इनर एनवायरनमेंट, maintains its identity, uniqueness. Then it regulate exchange of various substances from the external and also secretions from the internal side, यानी यह लेन देन को नियंत्रित कर रहा है. Thirdly, it also communicate to various other cells. That is again very important property in animal cells, to communicate. For example, in case of neuron, muscles. This is one of the figure that depicts how the cell membrane act selectively. Selectively का मतलब ये हुआ, कुछ को आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी, यानी चुनाव हो रहा है. Whether the material will be taken in or not, and what its pace will be, यानी उसकी दर क्या होगी जो भी चीज़ अंदर आ रही है. तो जैसा आप यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे के फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, इट्स वेरी थिन. यानी हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में तो इसको स्टडी ही नहीं कर सकते. वी रिक्वायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू स्टडी इट. सो इट्स वेरी थिन लेयर, बहुत पतली है,
महीन है, बारीक है, प्लाएबल है, प्लाएबल यानी मुड़ सकती है, इसको आप जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और इसकी जो विड्थ है वह लगभग 5 से 10 नैनोमीटर के करीब होती है। क्लियर? Now we go by various structural models proposed by very famous scientists. सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया मॉडल के बारे में, या जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, दैट वाज बाय अर्नेस्ट ओवरटन। ओवरटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अनियन रूट सेल पर काम किया। उन्होंने अनियन प्लांट्स को जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करवाया और ये देखा कि किस सॉल्यूशन से मटेरियल उन जड़ों में चला जाता है। तो उन्होंने नोट किया कि जो लिपिड सॉल्युबल थे या नॉन आयनिक मटेरियल्स थे वो तो आसानी से चले जाते हैं, लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स हैं या चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं तो वो जड़ों में नहीं आ पाते। तो उन्होंने इसका एक निष्कर्ष निकाला कि ज़रूर जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो लिपिड की होनी चाहिए, बिकॉज लिपिड्स आर क्वाइट परमिएबल फॉर द लिपिड सॉल्युबल बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इस तरह से अर्नेस्ट ओवरटन ने 1890 में लिपॉइडल थ्योरी को प्रपोज किया। लिपॉइडल थ्योरी यानी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, राइट। देन अ वेरी फेमस साइंटिस्ट गॉटा एंड ग्रेंडल, इन्होंने आरबीसी मेम्ब्रेन पर काम करना शुरू किया। इन्होंने ये नोट किया कि आरबीसी का जो सरफेस एरिया है और उसके अंदर प्रेजेंट जो लिपिड्स हैं वो उन सबको कंपेयर किया। इस आधार पर उन्होंने एक पॉइंट निकाला कि जो इसमें लिपिड्स हैं वो एक लेयर में न होकर 2 लेयर में होंगे, और 2 लेयर में लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स ही हो सकते हैं जो कि एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक यानी एक सिरा उसका हाइड्रोफोबिक होगा और एक सिरा हाइड्रोफिलिक होगा। और उन्होंने आरबीसी मेम्ब्रेन की जो शुरुआत करी उसको वाइट घोस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम डेड आरबीसी लेते हैं और डेड आरबीसी में से हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाता है, तो ऑलमोस्ट उसके अंदर क्या बच जाता है? मेम्ब्रेन बच जाती है। इसी मेम्ब्रेन पर उन्होंने स्टडीज़ करी और डेड आरबीसी विदाउट हीमोग्लोबिन आर कॉल्ड एज वाइट घोस्ट। सो इट स्टार्टेड अ न्यू एरा। बाद में आगे भी आप जब डिटेल स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें यही आता है कि मैक्सिमम स्टडीज़ या तो आरबीसी पर हुई या जो है न्यूरॉन्स पर हुई हैं। न्यूरॉन की जो न्यूरोलेमा होती है उसके ऊपर मेम्ब्रेन की मैक्सिमम स्टडीज़ परफॉर्म की गई। थर्ड मॉडल, दैट इज़ अगेन अ वेरी फेमस मॉडल, दैट इज़ डेप्सन एंड डेनियली मॉडल, जिसे हम ब्रेड बटर सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने कहा पहली बार कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो आउटर लेयर और इनर लेयर बनाते हैं। बीच बीच में प्रोटीन से ही लाइंड पोर्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से इनका जो मॉडल है वो फर्स्ट टाइम ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें प्रोटीन्स भी जो हैं वो मिल रहे हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अब तक का मॉडल था उसके अंदर केवल लिपिड्स की बात हो रही थी। इन्होंने सबसे पहले प्रोटीन्स की आउटर सरफेस, इनर सरफेस और उसके बीच में प्रोटीन लाइंड पोर्स के बारे में भी बताया। देन केम द रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। डेविड रॉबर्टसन ने 1959 के अंदर ये कहा कि भाई जो सेल की मेम्ब्रेन है बिल्कुल वही स्ट्रक्चरली जो है बाकी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन भी होती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो गई, गोल्जी बॉडी की हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की हो गई, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑल्दो मे हैव डिफरेंट केमिकल्स। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि भाई 3 लेयर्स होती हैं, बाहर के प्रोटीन्स, अंदर के प्रोटीन्स और बीच में फॉस्फोलिपिड की लेयर। तो इस तरह से ट्राइलेमिलर या ट्राइपार्टाइट मॉडल was given by रॉबर्टसन। इन्होंने इसकी विड्थ को भी कंफर्म किया। इन्होंने कहा कि भाई जो हर फॉस्फोलिपिड लेयर है वो लगभग 25 to 30 एंगस्ट्रॉम के करीब, 35 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है, और जो प्रोटीन लेयर्स हैं
वो 20 से 25 एंगस्ट्रॉम की लेयर ऊपर और 20 से 25 एंगस्ट्रॉम की नीचे, यानी कि 20-20 यदि आप देखें तो 40 एंगस्ट्रॉम की जो है वह हो जाती है प्रोटीन लेयर और 35 एंगस्ट्रॉम की मिडल फॉस्फोलिपिड लेयर। तो इस तरह से लगभग जो है यह 75 एंगस्ट्रॉम और एवरेज 65 टू 85 एंगस्ट्रॉम के करीब मेम्ब्रेन की विड्थ या थिकनेस होती है। रॉबर्टसन ने इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट की मदद से ये चीज़ पता लगाया था कि मेम्ब्रेन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डेंस जोन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट जोन है। तो जाहिर है जो इलेक्ट्रॉन डेंस जोन था वो तो प्रोटीन्स का था और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट जोन है वह फॉस्फोलिपिड का है। इस बेसिस पर जो मॉडल आया ट्राइलेमिनर या ट्राइपार्टाइट मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। जैसा आप डायग्राम्स में भी देख रहे हैं, सेल 1 और सेल 2 की जो मेम्ब्रेन है, पहला वाला जो फिगर है वो ओरिजिनल है, दूसरे में हमने कंप्यूटर की मदद से कलर एनहांस किया है ताकि आपको दोनों मेम्ब्रेन्स, 2 सेल की अलग अलग मेम्ब्रेन्स क्लियरली दिखाई दे सके। तो जो डार्क लाइंस हैं वो प्रोटीन की हैं और जो जैसे ग्रीन के बीच में हल्का ग्रीन है या रेड के बीच में हल्का रेड है वह फॉस्फोलिपिड की लेयर है। सबसे प्रमुख जो सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल है, इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, जिसके बारे में काम शुरू किया था जोनाथन सिंगर और गार्थ निकल्सन ने 1960s में और लगभग उन्होंने इसका निष्कर्ष 1972 में पब्लिश किया। और उसके हिसाब से ये था कि मेम्ब्रेन मुख्यतया फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इस फॉस्फोलिपिड की लेयर के बीच बीच में प्रोटीन्स धसे हुए रहते हैं जो अलग अलग व्यवस्था में पाए जाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिफर फ्रॉम दोज ऑफ प्रीवियस मॉडल। इन्होंने कहा ये मोज़ेक पैटर्न बनाते हैं। मोज़ेक का मतलब जैसे आपने टाइल्स को देखा होगा, अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होती हैं, है ना। तो हर घर के अंदर आप अलग टाइल का पैटर्न देख लेते हैं, अलग कलर होगा, अलग व्यवस्था होगी, अलग अरेंजमेंट होगा। वैसे ही हर सेल के अंदर, हर सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रोटीन्स की व्यवस्था, लिपिड की व्यवस्था अलग अलग तरीके से मिलेगी, लेकिन मोटे तौर पर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी और प्रोटीन इसके बीच में धसे हुए रहेंगे। और इसी चीज़ को उन्होंने कहा फ्लूइड मोज़ेक है। फ्लूइड मोज़ेक का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ इसमें स्थिर नहीं है, चाहे प्रोटीन्स हों चाहे लिपिड्स हों, यह अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ये बहुत ही कमज़ोर वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़े हुए रहते हैं। हालांकि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स होगी, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो बाहर की तरफ लगे हुए, ओलिगोसैकेराइड्स हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन डायनामिक स्ट्रक्चर है। डायनामिक का मतलब ये हुआ इट इज़ रेगुलरली इन सर्टन मोशन, मूवमेंट कर रहे हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो इस तरह से अगर अपन समराइज़ करें आज के लेक्चर को, तो सबसे पहला मॉडल जो आया ओवर्टन का, जिन्होंने लिपिड नेचर के बारे में बताया, लिपॉइडल थ्योरी के बारे में बताया। तीसरा जो मॉडल यानी जो इस सीरीज़ में, वैसे दूसरा लैंगुएर का है बट दैट इज़ ओनली लिपिड मोनोलेयर उन्होंने कही थी, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लिपिड बाइलेयर मॉडल दैट वाज गिवन बाय गॉर्टर एंड ग्रैंडल, और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन में जो 2 लिपिड लेयर है, बाइलेयर है, वो फॉस्फोलिपिड की होगी। फिर डेनियल डेवसन का ब्रेड बटर सैंडविच मॉडल, जिसमें उन्होंने कहा प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन के द्वारा लाइंड किए गए पोर्स भी होते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया। रॉबर्टसन ने ये कहा कि भाई जो मेम्ब्रेन का मॉडल है वो ट्राइपार्टाइट है, 3 परतें हैं, यानी इन्होंने डेनियल डेवसन को पुनः स्थापित किया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हर सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन एक सी होती है। और सबसे प्रमुख मॉडल आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकल्सन ने 1972 में दिया। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रोटीन कई तरह से पाए जा सकते हैं, जो पूरी तरह बाहर हो सकते हैं, पूरी तरह अंदर हो सकते हैं, और इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक कहते हैं।
तो इस तरह से हमारे पास जो प्रमुख मॉडल हैं, सैंडविच मॉडल डेनियली डेवसन, 2 लेयर ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बाहर और भीतर, बीच में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर तथा प्रोटीन से ही आवृत मैम जो पोर्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, जिनको हम मेम्ब्रेन पोर्स कह रहे हैं, प्रोटीन लाइंड होंगे। देन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय रॉबर्टसन, इन्होंने वापस से उसी चीज़ को फिक्स किया, उसकी विड्थ वगैरह बताई। और सबसे जो प्रमुख मॉडल है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे और इसी की बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा जाएगा। थैंक यू।